Good morning to all. Today I am going to discuss with you chapter number 6, part 2 from Honeycomb for class 7th. The name of the chapter is Expert Detectives. Students, in this video I am going to discuss with you part number 2 that comes under a title Catching a Crook. Expert Detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. Now I am going to start the chapter. Here Maya began to write the fact whatever he collected about Mr. Nath, and besides Maya, Nishad was lying on the bed. Maya made a list of the facts about Mr. Nath serial wise. She said that his name is Mr. Nath. We must discover his first name. Student, what's the meaning of first name? बच्चे, first name is a personal name given to someone at birth. For example, किसी बच्चे का नाम गुरवीर है, नेहा, राम, ये उसका first name है. राम कुमार, कुमार is surname, but Ram is first name used before a family, because जब भी family इसको address करती है तो उसके by name ही address करेगी. That is called our first name. In another word, we can say this is our forename. So firstly, Maya wanted to know about his first name, and he also known as crazy, mad and strange, unfriendly character in Shankar's house according to the tenants. टेनेंट्स मीन्स जो किराएदार वहाँ पे रहते हैं. फैक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग वो कहते थे कि ये एक मैड, स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली पर्सन है. अनफ्रेंडली कौन होता है बच्चे? नॉट फ्रेंडली, जिसका कोई फ्रेंड नहीं होता, जो बड़ा नॉट किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करता. नेक्स्ट, टॉक्स लेस एंड मैनरलेस. आफ्टर दैट, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स. He's been living in room number 10 of Shankar's house for more than a year. He doesn't work and sits in his room all day. The kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. He has no visitors except for a spectacled, fair, fat man. Here we are discussing about that visitor who is called Sunday visitors, who visits him on Sundays for lunch. Another fact about Mr. Nath is that food and tea are taken to his room by Ramesh from restaurant downstairs. But Maya noticed that Nishad had obviously not been paying too much attention to the list of facts. All he could say was, "Poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends." Maya again got angry and said, "How can a crook have friends, idiot?" I almost shouted. "At least he has one friend, and the one who meets him on Sundays." अब निशाद कहता है एक तो फ्रेंड है जो संडे को उसको आता है. नेक्स्ट, they guess that the Sunday visitors may be the partner of crime whatever was done by Mr. Nath. और वो क्यों आता है? मे बी वो अपना हिस्सा लेने आते हैं. मे बी he keeps all the loot and he comes now and then to give part it of his partner.
निशाद गॉट इरिटेटेड और वो कहता है इफ यू इंसिस्ट मीन डिमांड फोर्सफुली ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। ये चीज निशाद को इरिटेट करती है कि तुम बार बार उसे क्रुक 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 क्रिमिनल कहती हो, तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं जो हम डिस्कस कर पाएंगे। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच गॉर्जियस जनरस टिप्स। कि अगर वो जनरस टिप्स, इट डजंट मीन कि वो एक क्रिमिनल है, वो एक बदमाश, एक बुरा आदमी है। रमेश प्रोबेबली नोज, फिर माया सोचती है कि रमेश को पक्का पता होगा समथिंग अबाउट हिज पास्ट। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग। ब्राइबिंग मीन रिश्वत देना, किसी को अपने पास्ट को डिस्क्लोज ना कर दे, चुप करवाने के लिए उसको ग्रीस द पाम, रिश्वत देना। हिम टू कीप क्वाइट, कि वो चुप रहे, वो बोले नहीं। निशाद क्लियर्ड एट मी, निशाद फिर देखता है माया की तरफ और फिर वो कहता है हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवंथ। माया को ये चीज परेशान करती है कि ही इज नॉट पेइंग अटेंशन, ही इज आर्गुइंग, ही इज नॉट शोइंग हिज कंसेंट, नॉट गिविंग इक्वल consent to Maya that Mr. Nath is crook। तो वो कहती है कि हम प्रोग्रेस कैसे केस में आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशंस में अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा। तो सेवंथ कंडीशन अप्लाई करता, आई कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया। गिव अप मीन छोड़ दोगी ये आइडिया। अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, कि वो कोई भागा हुआ अपराधी है। क्योंकि ये चीज सेवंथ को क्या करती है, एग्री करती है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड, ऑफ मीन अगली, यू मेक मी मैड। माया कहती है कि क्या फायदा फिर इतनी इंक्वायरीज का, इतने फैक्ट को कलेक्ट करने का, अगर तुम लोग मेरे व्यूज के साथ एग्री नहीं करोगे। इफ यू थिंक ही इज नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। निशाद लुक्ड थॉटफुल होता है, विचारों से भरा हुआ नजर आता है। कहता कि मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, आई लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन, कि फिजिक वाइज वो थिन क्यों है। वाई ही इज सो लोनली, वो लोनली क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। दीज वर द रीजंस, दीज वर द फैक्ट्स दैट the Nishad was crazy to know. Nishad's motive was not to prove that Mr. Nath was a crook. तो माया कन्विंस करती है, try to understand seven. I told him if he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. तो माया फिर से डाउट अराइज करती है कि कुछ तो गलत है कि 1 साल से वो शंकर हाउस में एज ए टेनेंट रह रहा है और उसने कोई दोस्त ही नहीं बनाया। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज। कहती कि क्लियरली वो डरता है कि कोई उसे रिकॉग्नाइज कर देगा और गिव हिम अप टू द कॉप्स। कॉप्स मीन पुलिसमैन, वो पुलिस के हाथों में उसे दे देगा। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड। बट निशाद यहाँ पे फिर विरोध करता है माया के व्यूज का और वो कहता है कि नहीं हो सकता है कोई फ्रेंड बनना ही ना चाहता हो, कोई कोशिश ही ना किसी ने की हो। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वट ए नास्टी बेयर ही इज, आई सेड। माया को उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी पसंद नहीं है, दैट्स वाई शी सेड दैट वट ए नास्टी बेयर ही इज। अब निशाद कहता आई डोंट केयर, मुझे उसकी फिजिक से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं परवाह कि वो किस तरह से दिखता है। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। माया गॉट सरप्राइज्ड आफ्टर लिसनिंग इट। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हा यू आर क्रेजी। तो माया निशाद को कहती तुम तो पागल हो गए हो।
द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विद हिम, पुलिस तुम्हें भी उठा के लेके चली जाएगी जेल में. डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट. माया restricted निशाद to be friend with Mr. Nath. थ्रेट भी करती है कि cops will take you to jail with him. And what was the reaction of Nishad? Nishad merely glared at me here, Maya, and quietly walked out of the room. और चुपचाप कमरे से चला जाता है. My theories seemed to have made no impression on him at all. And माया महसूस करती है बेटे कि उसके द्वारा कलेक्ट किए गई इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट्स जो उसने सीरियल वाइज जॉट डाउन किए थे, उनका कोई भी प्रभाव नहीं है. निशाद किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं था कि वो एक भागा हुआ अपराधी है, और वो बिना ध्यान दिए कमरे को छोड़कर चला जाता है. So students, here the chapter is ended, and after reading a chapter, you people will be able to know how to become a good detective, how to collect the information about a persons from different resources, उसकी surrounding, उसके economical resources, उसके friend circle को देख के we can guess that whether a person is good or bad. Thank you. Have a nice day.